My voice is clear to everyone. Please let me know. Okay, fine. So let's start the class. First, I'm not able to share my screen. Please allow me. Please enable me to share my screen. Ma'am, your co-host, you can share the screen. But there is, but I am not able to share now. Ma'am, please try again. No, ma'am. Actually, I am. Sorry, host. I can't share my screen. Ma'am, please take now. Recording in Yes. progress. Thank you so much. Thank you. I hope my screen is visible to each and every one of you. In the last class, today technically it is our fifth class है ना हमारी ये fifth class है पर second class last class जो हमारी हुई थी उसमें कुछ टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग रह गए थे इसलिए मैंने फोर्थ क्लास जो हमारी लास्ट क्लास थी उनके टॉपिक्स को फटाफट कवर करेंगे फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे ठीक है तो हमने कैपिटलिज्म ऑलरेडी कवर कर लिया था सोशलिज्म कवर कर लिया था आज हमको स्टार्ट करना था सोशलिज्म के एडवांटेजेस तक कंप्लीट हो गया था एडवांटेजेस तक आज हमें लिमिटेशन से स्टार्ट करना है राइट आई होप यू ऑल रिमेम्बर व्हाट इज कैपिटलिज्म व्हाट इज सोशलिज्म मैं एक लाइन में समझा देती हूँ आप लोगों को कैपिटलिज्म मीन्स व्हेन इन एनी कंट्री the whole economy is based on private need right everyone is doing private ship all everything is doing on a privatization right कि हर एक काम प्राइवेट बेसिस पे हो रहा है एवरीवन ओन हैज own responsibility there is minimum government interventions right but in socialism it the role of government is maximum everything is under the control of government and it is for social welfare right so there were advantages also what are the limitations let's first discuss lack of initiatives for innovations and efficiency. Obviously, when you are controlled by government, and efficiency is very less because there is no other competitions in the market. So that's why here the role of government role is maximum, right? Role of government is maximum due to which the innovations and efficiency is minimum, right? Second, bureaucracy and centralized control. Bureaucracy and centralized control means that everything has a hierarchy. एक proper plan है. There is a proper plan, right? जो हम follow कर रहे हैं. Proper एक plan चल रहा है जिसके basis पे आप लोग काम कर रहे हो. तो कई बार क्या होता है कि आपको advantages से पढ़ाना था. चलो ठीक है डिसएडवांटेजेस कर लूं फिर एडवांटेजेस पढ़ा दूंगी अब स्टार्ट किए तो लेट इट बी ठीक है डिसएडवांटेज कंप्लीट करके आई स्टार्ट एडवांटेजेस तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है पहले डिसएडवांटेज पढ़े एडवांटेज तो ब्यूरोक्रेसी एंड सेंट्रलाइज कंट्रोल में क्या है कि आपकी जो प्लानिंग है राइट आप बहुत हायरार्की फॉलो करते एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो एक स्ट्रक्चर जब फॉलो करते तो उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते कई बार आपको इंस्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं बट ड्यू टू हायरार्की वो डिसीजंस आप राइट टाइम पे नहीं ले पाते हो
तो ये सब चीजों का बहुत प्रॉब्लम आता है सोशलिज्म। Third is reduce individual freedom in economic decisions. इंडिविजुअल के पास कोई फ्रीडम नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई डिसीजन लेने का। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट? Right, for example, people may have fewer options when it comes to choosing where to work, what to buy or where to invest their savings. बस उनके पास यही दो तीन ऑप्शंस रहते हैं कि कहाँ वो काम करना चाहते हैं, क्या वो खरीदना चाहते हैं, एंड कहाँ वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वेयर दे वांट टू वर्क, what to buy and where to invest their money, their savings, right? इसके अलावा उनके पास कोई डिसीजंस नहीं है, वो कोई न्यू बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते, वो अपने आइडिया के अकॉर्डिंग कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कंट्री के अंदर। इनको टोटली डिपेंड करता है गवर्नमेंट में, वट एवर गवर्नमेंट इज गिविंग देम, वट एवर पे स्केल दे आर गिविंग, यू हैव टू जस्ट फॉलो दिस, राइट? पोटेंशियल फॉर गवर्नमेंट ओवररीच। Potential for government overreach means the government has a significant control over the economy and society, which lead to authorization or government overreach. Without checks and balances, government may become too powerful and suppress individuals. अब क्योंकि गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल है इकोनॉमी एंड सोसाइटी का, तो यहाँ पे वो ओवर रीच करते हैं। ओवर रीच मीन्स दैट दे बिकम मोर एंड मोर पावरफुल, राइट? मोर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, जिसकी वजह से इंडिविजुअल सप्रेस हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स की जो मतलब उनको बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड कर देंगे, उनके ऊपर कंट्रोल बहुत ज्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से वो खुल के नहीं जी पाएंगे, राइट? लास्ट, फिफ्थ वन, difficulty in coordinating economic planning, and there is a complex situation रहती है, बहुत चैलेंजिंग है सेंट्रल अथॉरिटी के लिए, क्योंकि उनको हर एक चीज, कंज्यूमर प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजी, मार्केट कंडीशंस, हर सब चीजों को मैनेज करना एक अथॉरिटी को के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो दीज आर द 5 डिसएडवांटेजेस, right? These are the advantages, disadvantages, ये सारी problems है, limitations है socialism की। I think is it clear to everyone, so that we can move to the next topic, advantages of socialism। सबको clear है? Voice clear है मेरी? Topic is clear to each and everyone? Fine. जिनको भी वॉइस इशू आ रहा है वो आपके एंड से प्लीज रिफ्रेश कर लो या रीज्वाइन कर लो क्लास को। Advantages of socialism, right? Reduction of income inequality. Reduction of income inequality means one of socialism's primary goal is to reduce income and wealth inequality by redistributing resources. Means कि अगर you work in a private sector, जब आप एक private sector में work करते हो, right? Are you getting my point? जब आप एक private sector में work करते हो, तो आप अगर किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, तो उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा, उनकी पे स्केल डिफरेंट होगी। आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, फॉर एग्जांपल टाटा, रिलायंस, उनका सैलरी स्ट्रक्चर हाई होगा, आपके रोल पे डिपेंड करता है, राइट? तो यहाँ से क्या होता है, आपकी इनकम इनक्वालिटी हो सकती है। बट आप सोशलिज्म की अगर बात करते हो, तो गवर्नमेंट का रोल है सोशल वेलफेयर, सबको प्रॉफिट हो, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कर रही है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी की रिडक्शन होती है, इनइक्वालिटी कम होती है। वो कोशिश करते हैं कि इनकम में क्वालिटी आए। क्या है? इनकम में क्वालिटी आए, राइट? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इज इट क्लियर? Is it clear to everyone? Yes, I'll try to speak in both English as well as Hindi. So in English, right? Next is social welfare and public services. This is totally dedicated to the society welfare and public services like healthcare, education, transportation facility that government is providing you. You can access these all services, right? One's services are regardless one's ability to pay. The ones who are able to, they can pay, they can afford, they are paying and just getting the advantages of all this, right? जो पे कर सकते हैं
वो पे कर रहे, जो नहीं कर सकते पे, वो भी इन फैसिलिटीज को ले रहे हैं। यू रिमेम्बर, इफ यू आपकी थोड़ी जनरल नॉलेज स्ट्रांग है या आपको अवेयरनेस है मार्केट में क्या हो रहा है, तो आयुष्मान भारत करके एक स्कीम है जिसके थ्रू आपको हेल्थ केयर में बहुत सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है। आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना पड़ता है। तो जो लोग ये स्पेशली जो ये सब स्कीम्स आती हैं, जब लॉन्च होते हैं, ये जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ला रही है, दिस दे आर टेक्निकली फोकसिंग ऑन द लोअर क्लास, द lower middle, the ones who are not able to pay a high amount, right? But some, you know very well that in India, many families, many, the ones who can afford the price, high price, they still are taking the advantage of Ayushman card. So this is what why the ones who are able to pay or not able to pay, they are taking the advantages of society services which are given by the, which are providing by the government. Is it clear to everyone? Next is focus on social and economic justice. Socialism aims to prioritize the well-being of entire population rather than focusing on individual profit. You know very well कि in capitalism, हमने last class में capitalism पढ़ा था, तो capitalism का full focus होता था profit earn करना, क्योंकि वो private sectorally own होती थी business, right? But यहाँ पे आपका sole purpose है society welfare, social welfare, right? So यहाँ पे आप इकोनॉमिक जस्टिस लेके आते हो, क्योंकि योर फोकस इज नॉट टू अर्न अ प्रॉफिट। आप प्रॉफिट नहीं अर्न करना चाह रहे हो, आप फेयर ट्रीटमेंट करते हो, सोसाइटी को इक्वल ट्रीट कर रहे हो, whether you belong to any category. Is it clear to everyone? Next is prevention of monopolies. Industries that provide essential goods and services usually controlled by the state or by cooperatives, preventing the formation of monopolies that could even exploit the consumers, right? यहाँ पे जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ रही है, कॉपरेटिव्स के अंदर आ रही है, ये लोग कंट्रोल जब कर रहे हैं मार्केट को, इंडस्ट्रीज को, तो इनका सोल पर्पस है कि जो आपके कंज्यूमर्स हैं वो एक्सप्लॉइट ना हो। मोनोपोलिस्टिक का मतलब है कि एक ही सेलर है, आप एक ही इंसान से गुड्स परचेज कर सकते हो। तो जब उसका राज है, उसका राज होगा मार्केट में, तो वो मनचाहे रेट लेगा, राइट? Prevention of monopolies means monopolies are market where only one single seller is available and there are lots of buyers. Everyone wants to purchase that good from that single owner only. So he can make any charges, he can ask you any amount he or she wants, right? So they want to, just in socialism, the government wants to prevent that monopoly so that they cannot exploit the consumers. Consumers को कुछ बुरा ना लगे, उनका exploitation ना हो, उनके साथ कुछ गलत ना हो, that's why. Next is economic stability. Since socialist economies rely on central planning, right, they are less likely to experience the boom and bust cycle that can destabilize the capitalist economies. The government can plan production, consumption level to avoid shortages and surpluses, creating more economic stability. आपको मालूम है, हमने कैपिटलिज्म में पढ़ा था कि एक टाइम आता है मार्केट में जब आपका बिजनेस बूम करता है, जब वो एकदम हाई लेवल पे पहुंच गया, एकदम मेच्योरिटी लेवल में, जहां उसको हायर प्रॉफिट हो या लॉस की सिचुएशन बहुत कम है। एक होता है बस जब उसका डिक्लाइन हो जाता है बिजनेस का। ये सब पॉसिबल होता है आपके कैपिटलिज्म, राइट? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो मार्केट, बट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ये सब चीजें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वर्क करती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सोशलिज्म इकोनॉमी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्लान करती है, तो गवर्नमेंट इस तरीके से प्लान करती है कि किसी भी चीज का शॉर्टेज ना हो, ठीक है, सरप्लस रहे और एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बने, शॉर्टेज भी ना हो, बहुत ज्यादा सरप्लस भी ना हो, इस चीज का पूरा ध्यान रख के गवर्नमेंट काम करती है। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? So that we can move to the next topic, mixed economy. Monopolies like IRCTS, surplus means ज्यादा सामान बना लिया जरूरत से ज्यादा। Is it clear to everyone? Let's next move to the next topic. एग्जाम्पल रह गया इसका, सोशलिस्ट कंट्रीज कौन कौन सी हैं। लास्ट क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम्पल्स पूछे थे।
फिफ्थ पॉइंट है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि जब आप कैपिटलिज्म में बात करते थे तो आपने वर्ड पढ़ा था बूम एंड बस्ट। बूम मतलब जब आपका बिजनेस राइज कर रहा है, ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है। बस्ट मतलब कि आपका बिजनेस डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन हो रहा है मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। तो ये कंडीशन सब पॉसिबल होती है जब आप किसी बिजनेस को प्राइवेटली ओन करते हो। बट जब सोशलिस्ट की बात करते हो तो आपका मतलब ही सोशल वेलफेयर से। तो आप इस तरीके से चीजों को अरेंज करते हो कि ना ही आपके पास किसी प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो, ना ही किसी प्रोडक्ट की सरप्लस हो, ना तो कमी हो ना ही वो ज्यादा बन जाए। इसे बोलते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है। अब जो भी रिमेनिंग डाउट्स है स्टूडेंट्स वो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ऐसे आपका ना कोर्स नहीं कंप्लीट हो पाएगा, राइट। लास्ट के जो टाइम बचेगा तो हम इसमें ले लेंगे। डोंट वरी, आप अपने बस पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट कीजिए। व्हेन आई आस्क यू फॉर अ डाउट क्लियरिंग इन द लास्ट 5 मिनट्स, देन प्लीज आस्क मी, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट का मैसेज मिस हो जा रहा है, डोंट वरी, वो हम डाउट क्लियरिंग सेशन में कर देंगे बेटा। कोर्स भी कंप्लीट करना जरूरी है। एग्जाम्पल्स क्या है आपके सोशलिस्टिक कंट्रीज के? क्यूबा है, चाइना है। दे बोथ आर देयर गवर्नमेंट ओन प्रॉपर बेस्ड ऑन सोशलिज्म, राइट। आपको सिर्फ कंट्रीज के एकदम नाम पता होंगे वेन एवर यू आर गिविंग एन आंसर, दैट विल हेल्प यू एंड हेल्प्स यू टू गेट अ गुड मार्क्स। ठीक है। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, वेन एवर योर आंसर विल बी रीड बाय द, देन दे विल सी कि यस एग्जाम्पल्स पता है तो डेप्थ नॉलेज है, ऐसा समझ में आता है। ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जब आपके कंट्री में कुछ चीजें प्राइवेटली ओन कम है और कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर, राइट। पब्लिक से, सोसाइटी के पब्लिक, इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ सिस्टम जहाँ इंकॉर्पोरेट्स बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, जिनके दोनों के फीचर है। कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, वन ऑफ द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। आपकी कंट्री फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया में टाटा, रिलायंस, अडानी या एनी अदर कंपनी यू टेक, राइट, ये सब क्या है? प्राइवेटली ओन्ड है। ये जब चाहे आप एयरटेल, राइट, मतलब कोई भी कंपनी ले लो आप, ये सब कंपनीज जो है बड़ी बड़ी, दे कैन मेक अ डिसीजन ऑन देयर ओन कि इनको कौन सा नया प्लान मार्केट में लाना है, कौन सा नया प्रोडक्ट लाना है, कौन से नई फील्ड में इन्होंने पैसा लगाना है। इट्स टोटली बेस्ड ऑन देम। दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एट ऑल, राइट। प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं जो ऑपरेट करते हैं प्रॉफिट के लिए। गवर्नमेंट कंट्रोल्स सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस, ये सब कंट्रोल करता है। जैसे कि आयुष्मान आ गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, राइट, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। सो दिस आर द सेक्टर्स जहाँ पे पब्लिक रोल कर रही है, प्ले कर रही है, और प्राइवेट सेक्टर जो प्रॉफिट के लिए सब काम कर रहे हैं आपकी कंट्री में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी का फर्स्ट पॉइंट बताया है, ये क्लियर हो गया? Next is government interventions in the economy. In a mixed economy, the government interventions to regulate the economy ensures that market functions efficiently and equitably. This includes setting rules for business, ensuring fair competition, protection against consumer rights, addressing market failures, example pollutions or monopolies. देखो, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस ऑलरेडी मैं समझा चुके हैं आपको कि आपको मालूम है कि अगर आपको अपनी कंट्री में, इंडिया में, अगर किसी को आर्म्स का बिजनेस करना है, मतलब बंदूक बंदूक का बिजनेस करना है, तो दे हैव टू टेक अ लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, राइट। आपको मालूम है कि अगर आपको किसी इंडस्ट्री को सेटअप करना है तो इस इंडस्ट्री को इस तरीके से सेटअप करना है कि उससे आपकी जो पब्लिक है, रेसिडेंशियल एरिया को कोई लॉस ना हो, पॉल्यूशन को मतलब पॉल्यूशन ना हो, इन्वायरमेंट हार्म ना हो, और पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्री वर्क करे। पॉल्यूशन फ्री मतलब मिनिमम, मतलब लीस्ट टू लीस्ट पॉल्यूशन हो सके। इन सब चीजों का ध्यान रखना। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है कि अगर किसी कंज्यूमर के साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, एनी फ्रॉड इज टेकिंग प्लेस विद एनी कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को लेकर, तो दे कैन फाइल अ केस अगेंस्ट कंज्यूमर राइट्स, राइट, दे कैन गो टू द कोर्ट। This is what government interventions.
गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स किस तरीके से रन करती, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रही है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पेंशन दे रही है, ताकि इकोनॉमी में इक्विटी और सोशल जस्टिस बना रहे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Next is market mechanism with social objectives. While market in a mixed economy generally operate on the basis of supply and demand capitalist principle, and the government may intervene to achieve specific social goals, such as reducing inequality, providing universal health care, or addressing environmental concerns. आपने देखा होगा, देखो दो चीज होती है यहाँ पे। फर्स्ट इज मार्केट मैकेनिज्म, जो भी गुड्स के प्राइस डिसाइड होते हैं, मार्केट के प्राइस डिपेंड करते हैं सप्लाई एंड डिमांड में, द वे इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जैसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, मिक्स्ड इकोनॉमी में भी सेम उसी तरीके से मार्केट रन करती है जैसे कैपिटलिस्ट में रन करती थी। कैपिटलिस्ट में कोई भी प्रोडक्ट के प्राइस डिपेंड करते थे सप्लाई एंड डिमांड पे, राइट? मतलब कि जहां सप्लाई और डिमांड से कट करते, ये होता था उनका पॉइंट, जहाँ पे मार्केट रन करती थी। सेम वे आपका मिक्स इकोनॉमी में भी होता है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवीन होता है। किस तरीके से? आपको मालूम है बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि सोशल CSR, ये वर्ड सुना होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे जस्ट इन्वेस्ट सम पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट इन द सोसाइटी वेलफेयर, राइट? कुछ लोग हेल्थ केयर कैंप्स लगवाते हैं, या गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि इन्वायरमेंट हार्म नहीं हो रहा है, इन्वायरमेंट के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब दे इंश्योर्स, गवर्नमेंट इस चीज पे ध्यान देती है स्पेसिफिकली कि इनइक्वालिटी किसी एम्प्लॉय के साथ ना हो रही हो, इक्वालिटी मेंटेन हो, डेकोरम मेंटेन हो, किसी भी सोसाइटी को किसी तरीके से उस बिजनेस से हार्म ना हो रहा हो, इस चीज को इंश्योर करती है, मार्केट के इन चीजों को इंश्योर करती है, राइट? जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी डिजिटल मार्केटिंग, राइट, कितने सारे कितने सारे इंसेंटिव्स आप हमारी कंट्री में लिए गए रिसेंटली। अभी एक बहुत बड़ा क्रिएटर्स अवार्ड कंडक्ट हुआ था, राइट, हमारी कंट्री में, अगर आपको पता हो, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होल्ड किया था। उन्होंने बहुत सारे लोगों को, डिफरेंट कैटेगरीज थी क्रिएटर अवार्ड्स में, उनको अवार्ड्स देके अवार्ड सब दिए थे, राइट? प्रॉपर ऑडिटोरियम में एक बहुत बड़ा लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया गया था क्रिएटर्स अवार्ड करके। तो ये सब क्या है? ये सब है जहाँ पे गवर्नमेंट उन्हें इनकरेज कर रही है कि आप खुद आके एक एंटरप्रेन्योरशिप को रन करिए, और एक तरफ से वो मोटिवेट करने का काम करिए जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वो एक सोशल पर्पस हो जा रहा है, और एक इंडिविजुअल ग्रो करेगा, वो उसका एक प्रॉफिट अर्न करेगा, वो उसका एक इंडिविजुअल ग्रो हो जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? और आई शुड एक्सप्लेन वंस अगेन। इंडिविजुअल ग्रोथ हो रही, मैं अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ और वहां लोग काम करने आ रहे हैं, तो प्रॉफिट तो मैं मान लू 100% अर्न कर रही हूँ। गवर्नमेंट का रोल तो मिनिमम है ना। अब पैसा देश में ही आ रहा है, तो इंडिविजुअल का प्रॉफिट भी अर्न हो रहा है, गवर्नमेंट का हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Private ownership with regulation. In a mixed economy, individual business can own property, start business, invest in capital, right? For example, देखो सिंपल बात वही लिखी है कि प्राइवेट ओनरशिप विद रेगुलेशंस, कि आपको गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस मानने के साथ साथ आप प्राइवेटली ओन कर सकते हो अपने बिजनेस को। आप कोई प्रॉपर्टी बेच सकते हो, खरीद सकते हो, यू कैन परचेज और सेल एनी प्रॉपर्टी, यू कैन स्टार्ट और जस्ट डिस्क्लोज योर बिजनेस, और इन्वेस्ट इन कैपिटल्स, और इन्वेस्ट इन any you in any field you want to invest, whether you want to invest in shares market or open market, but wherever you want to invest your money, or you want to invest, you want to make FD, anything you want to take, it's your ownership, it's your own right. Government will not will just disturb you or interfere in your personal belongings. But how government is compromising here? Government just ensures that you are following the labor law, you are following the
whatever laws are environment laws, whatever laws are regulating industrial laws in government, right? That should not be that should not be exploited, that should not be neglected, right? ये कहने का मतलब है प्राइवेट ओनरशिप विद रेगुलेशन का मतलब है कि आप अपने बिजनेस अपनी प्रॉपर्टी को रन करो, कहीं भी खरीदो बेचो कुछ भी करो, बट गवर्नमेंट के जो लॉज है उनको आप अवॉइड करके फॉर ग्रांटेड लेके कोई काम नहीं करोगे। अगर लेबर लॉ बना है तो यू मस्ट इंश्योर कि आप लेबर के सारे लॉज फॉलो कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर इंडस्ट्रियल लॉ को आप फॉलो कर रहे हो, राइट, इस चीज का आपको बस ध्यान रखना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is it clear to everyone? Yes, laws are binding them. Exactly. Next is social welfare and redistribution. Social welfare redistribution means that a key feature of mixed economy का है कि social services by the government, right? जैसे health care, education, housing, unemployment insurance देना, right? और redistribution का मतलब है government often use progressive taxation कि आप अपनी वेल्थ के हिसाब से टैक्स दे रहे हो, ये आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ, ठीक है? जो उस कैटेगरी में आएगा वो देगा टैक्स, जो नहीं आएगा वो नहीं देगा। So let's move further. एडवांटेजेस कि जब आप प्राइवेटली और गवर्नमेंटली दोनों होते हो तो आप अपने रिसोर्सेस के यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से कर पाते हो यहाँ पर, ठीक है? सेकेंड, जैसे गवर्नमेंट में रेगुलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर ताकि कोई वेस्टेज ना हो, ये गवर्नमेंट के अंदर है, तो रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन हो रहा है, प्रॉपर यूज हो रहा है, कोई वेस्टेज नहीं हो रही। सेकेंड, रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से क्या हो रहा है कि प्रॉफिट भी अर्न हो रहा है इंडिविजुअल का और किसी के साथ कोई इनइक्वालिटी भी नहीं हो रही इनकम में, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रूल्स लॉज है उनको वो फॉलो कर रहे हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस तरीके से है कि आप ड्यूरिंग रिसेशन गवर्नमेंट कैन इंक्रीज स्पेंडिंग और लोअर टैक्स, मतलब गवर्नमेंट का रोल है तो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग टैक्स रेट्स बढ़ा सकती, सिचुएशन को देख के, इन्फ्लेशन है तो, रिसेशन है तो वो टैक्स लोग कम कर सकती है, ठीक है? आरबीआई अपने अकॉर्डिंग जो भी रूल्स रेगुलेशंस है इकोनॉमी को प्रॉपर रन करने के लिए दे कैन टेक, राइट, ताकि एक स्टेबिलिटी बनी रहे इकोनॉमी में। तो गवर्नमेंट का रोल भी है और प्राइवेट का, क्योंकि अगर सिर्फ प्राइवेट का रोल रहेगा तो उसकी क्या डिसएडवांटेजेस है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है? यहाँ पे ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो जाएगा। बट अगर आप मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हो तो इसमें सबसे बेस्ट इकोनॉमी कही जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रेगुलेशन है, आपका सेंट्रल बैंक आरबीआई जो इकोनॉमिक कंडीशंस और स्टेबिलिटी को रेगुलेट कर रहा है, जिससे पब्लिक को कोई हार्म नहीं हो रहा है और पब्लिक इंडिविजुअली भी ग्रो कर रही है। इनकरेज इनोवेशन, क्योंकि प्राइवेटली ओन कर सकते हो आप इसमें, तो आप इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो मैंने अभी आपको क्रिएटर्स अवार्ड बनाए, ठीक है, बहुत सारी कैटेगरीज थी, आज जाके नेट पे सर्च करना क्रिएटर अवार्ड्स, तो आपको क्रिएटर अवार्ड्स के बारे में पूरी नॉलेज मिलेगी। दिस इज व्हाट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरीके से इनकरेज किया, मोटिवेट किया ताकि और ज्यादा लोग इस फील्ड में आए। सोशल वेलफेयर एंड पब्लिक राइट, कंट्रीज में यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है, मेडिकल केयर सिस्टम है, ये सब चीजें हो गई। बैलेंस्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट, ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है, क्योंकि किसी भी तरीके से, चाहे आप लोअर क्लास से बिलोंग कर रहे हो, हायर क्लास से बिलोंग कर रहे हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल, लोअर मिडिल, हर एक इंडिविजुअल की यहाँ पे हर एक कैटेगरी की गवर्नमेंट टेक केयर कर रहा है, राइट? आप और जो भी रिस्क है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कंट्री भी ग्रो करे और इंडिविजुअल भी साथ में ग्रो करे, बिकॉज अगर इंडिविजुअल ग्रो नहीं करेगा तो कंट्री ग्रो करना मुश्किल होगा। तो एक कंट्री को रन करने के लिए गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना भी बहुत जरूरी है। अब खुद इमेजिन करके देखो, अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे तो कितना क्राइम बढ़ जाएगा अपने देश में, राइट? ऑलरेडी इतने रेप केसेस हमारी कंट्री में हैं, इतने सारे पेंडिंग केसेस हमारी कंट्री में, वो सब चीजें अगर बंद हो जाए, गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, जिसको जो करना है करे, तो आप कंडीशंस इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी वर्स हो। तो इसलिए गवर्नमेंट का रोल होना भी इम्पोर्टेंट है और प्राइवेटली आपका ग्रो करना भी विदाउट इंटरवेंशन के भी इम्पोर्टेंट है। तो उन सब चीजों को बैलेंस्ड अप्रोच बना के चलना है
ठीक है, जिससे एक मार्केट में एक कंपटीशन भी बना रहे, हेल्दी कंपटीशन बना रहे लोग, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट में आपकी कंट्री के पब्लिक सरवाइव करे। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? क्या नहीं समझ में आ रहा है? कुछ स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? पोटेंशियल फॉर गवर्नमेंट ओवररीच। सिंपल सी बात है, मिक्स इकोनॉमी रिक्वायर्स केयरफुल बैलेंसिंग ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट intervenes too much, it stifles the competition and create inefficiency, leading to excessive bureaucracy and slowing economic growth. बहुत ज्यादा जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो जाता है, उससे क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी में फर्क पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो हो जाती है। सेकेंड, इनएफिशिएंसी इन पब्लिक सेक्टर। आपको मालूम है कि कितने आप हर किसी ने पब्लिक सेक्टर में ये अब जरूर फेस किया होगा, वेदर यू गोइंग टू एनी पब्लिक सेक्टर बैंक और वेरेवर, कि वहां पे जो लोगों के अंदर वो एंथुजियाज्म नहीं, वो करेज नहीं है किसी काम को करने के लिए, वो सिंपली बैठे हैं, वो रिस्पॉन्सिव नहीं उठने चाहता। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, वेस्टफुल स्पेंडिंग है, तो ये सब पब्लिक सेक्टर में इनएफिशिएंसीज का रोल बहुत ज्यादा है ना? कई बार आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए होंगे तो वहां पे भी कोई नहीं देखता, या फिर, इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज हायर टैक्सेस। आपको मालूम है, अगर जितनी ज्यादा हायर टैक्सेस होंगे तो जो लोअर क्लास है वो सफर कर देंगे बहुत ज्यादा, और जो वैसे भी हाई क्लास है वो ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं, राइट? तो हाई टैक्सेस कैन रिड्यूस, इंसेंटिव्स रिड्यूस कर देंगे, पोटेंशियली स्लो डाउन हो जाएगी आपकी इकोनॉमी ग्रोथ। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इंटर्नशिप। कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट रेगुलेशंस और पब्लिक ओनरशिप ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज माइट लिमिट द एबिलिटी ऑफ प्राइवेट बिजनेस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस ऐसे हैं कि आपकी लिमिट लगा दी कि आप इससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, मैं इससे ज्यादा अर्न नहीं कर सकते। कन्वर्सली पब्लिक सेक्टर में लगा दी, किस पे लगाइए? पब्लिक ओनरशिप में। मतलब सेम बिजनेस है, कोई प्राइवेटली अर्न कर रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, मैं ऐसा कुछ बता नहीं रही हूँ, एक एग्जांपल ले रही हूँ। ये एक ए बैंक है जो गवर्नमेंट बैंक है, और एक ये बी बैंक है जो प्राइवेट बैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है, पब्लिक ओनरशिप है, वहां पे हमने लिमिट लगा दी, ability of private business to maximize profit। ठीक है, conversely the private sector might lobby against government policies that promote social welfare but increase their operating cost। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? चलो फिर से पढ़ो एक बार, फिर देखते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशंस और पब्लिक ओनरशिप ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज might limit the ability of private business to maximize profit। गवर्नमेंट रेगुलेशंस है जो पब्लिक ओनरशिप है, वो कुछ इंडस्ट्रीज में, ऑन सम इंडस्ट्रीज माइट लिमिट द एबिलिटी, उनकी एबिलिटी पे लिमिट लगा दे रही है बिजनेस पे टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। वहीं पे प्राइवेट सेक्टर में लॉबी अगेंस्ट पॉलिसीज, बट वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपने मेरे प्रॉफिट को 100% से ऊपर ले जाने में लिमिट लगाई है, तो मैं 150% प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, पर 150 में से 30% मैं क्या कर रहा हूँ, सोसाइटी वेलफेयर में लगा दे रहा हूँ। अब उससे क्या हो रहा है, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जा रही है और प्रमोट हो जा रहा है आपका सोशल वेलफेयर। इस तरीके से क्या होता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है एक पब्लिक सेक्टर इंटरेस्ट में, प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट में। आगे बात समझ में? इज इट क्लियर
कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो जाते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में। देखो, आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो, प्राइवेट बिजनेस है आपका, आपको मालूम है आपकी एबिलिटी है कि आप 150% प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट आपको बोले नहीं, 100% से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है आपने, तो ये तो जबरदस्ती गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो गया। आप क्या कहते हो, ठीक है अगर मैं 150% प्रॉफिट अर्न करने दो, मैं 30% ना सोसाइटी वेलफेयर में लगा दूंगा, प्लांट्स लगा दूंगा एनवायरनमेंट में, या एजुकेशन सिस्टम में किसी सेक्टर में लगा दूंगा, ब्लड डोनेट करा दूंगा, कैंप लगवा दूंगा, इस तरीके से। जिससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट की जो सोशल वेलफेयर है वो सोसाइटी में इंक्रीज हो जा रही है, उनका एक नाम हो जा रहा है कंपनी का, राइट। अब क्लियर हुआ? नाउ इज इट क्लियर टू यू ऑल? कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। अरे सिंपल सी बात है कि ऐसा एरिया, मतलब ना कई, मैं मीनिंग समझा दे रही हूँ यहाँ पे, बट ना आप लोग इस मेच्योरिटी लेवल पे हो, एक फ्रेंडली सजेशन दे रही हूँ, इसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में, आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब आपको ऑब्वियसली बात है कि हर एक वर्ड का मीनिंग एग्जैक्ट नहीं पता हो सकता, तो आप क्या करो, उसके पहले का पोर्शन पढ़ो, उसके बाद का पोर्शन पढ़ो, उसको लिंक करने का मत सोचो, ये एक तरीका होता है, कई बार आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा वो क्या कहना चाह रहा है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया यहाँ पे कि आपके पे लिमिट लगा दी कि आप 100% प्रॉफिट अर्न करोगे, बट आपको मालूम है कि आप 150% अर्न कर सकते, तो ये जो मैक्सिमम, ये आपके पास एरिया ज्यादा है कवर करने का, तो उसके लिए आपने क्या किया, प्रमोट कर दिया सोशल वेलफेयर। समझ कि वो जो एक डिफरेंस है, गैप है, उसको फिल कर दिया। यस, आई कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश, प्लीज वेट फॉर अ मिनट। जिन्होंने पूछा उनको समझ में आ गया, लॉबी लॉबी लिख दिया था पूरा। द सी, conflicts between public and private interest means that public sector private only wants to grow and to earn maximum profit, right? But government wants just make a little bit limits, marks the limit on the private sector company. For example, there is a company named A which is privately owned, and government marks that you cannot cross 100% profit, but the company's limit is 150%. So government, private sector company ask government that we will, the extra percent that we are earning will contribute some portion on the society welfare by giving education or in healthcare or in um, education, healthcare, environment protection, right? Anywhere like blood donation. So this is how they can utilize. So there is always a conflict between public and private. ये सच में ऐसे conflict हो नहीं रहा है कि लड़ नहीं रहे दोनों लोग बैठ के आपस में, कि आप सोच रहे हो conflict का मतलब है कि इधर एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बैठा है, इधर इधर आपका प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय बैठा है और आप लोग फाइट कर रहे हो। नो, नॉट एट ऑल दैट, इसका मतलब ये नहीं, ठीक है ना। बट एक इंटरवेंशन एक चलता रहता है, और लास्ट में कॉम्प्लेक्स डिसीजन है, क्योंकि आपको प्राइवेटली भी देखनी है पॉलिसीज को और पब्लिक लेवल पे भी देखनी है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट तो है ये मैनेज कर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक। और कोई भी क्वेरी रह गई है स्टूडेंट्स
तो हम इसको डाउट क्लियरिंग सेशन में लेंगे, ठीक है। आई टेक इन दिस इन द डाउट क्लियरिंग सेक्शन। अगर मैं क्लास में ऐसे एक एक बच्चे के डाउट लूंगी, सॉरी, हमारा कोर्स तो एक साल में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो दिस इज आवर न्यू टॉपिक। Yes, I can explain in English. Don't worry. From this topic, I'll start explaining in English also. This is our fifth topic, that is social environment. Social environment refers to cultural, social, and demographic characteristics. Cultural, social, and demographic. The social environment talks about cultural plus social plus demographic. Demographic means population. It includes factors such as values. क्या है? Culture से आती values. Every culture has their own value system, right? Own belief system, own customs, traditions, attitudes, lifestyle, right? एक हिंदू फैमिली का डिफरेंट लाइफस्टाइल, एक पंजाबी फैमिली का डिफरेंट लाइफस्टाइल, एक जैन फैमिली का डिफरेंट, मुस्लिम फैमिली का डिफरेंट लाइफस्टाइल. So this is all what their custom beliefs every culture has, right? With due respect, every culture has their own traditions, attitudes, and lifestyle. So how they are influencing the market, their goods and services. Let's talk about this. ठीक है. एक सोसाइटी में, एक सोशल एनवायरनमेंट में, आपके देश में बहुत सारे कल्चर्स बिलोंग करते हैं. पंजाबी, हिंदी, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे मतलब एक सॉरी छोटे छोटे मीन्स कि बहुत छोटे 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 ऐसे जोड़ो ना, बहुत सारे कस्टम्स है, कल्चर्स है, राइट. तो इस इंडिया तो बहुत सारे कल्चर से मिलकर बना हुआ है. तो सोसाइटी में किस तरीके से हर एक कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस तरीके से प्रोडक्शन मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, इसके बारे में हम सोशल एनवायरनमेंट में पढ़ें. नेचर क्या है? नंबर वन, इसमें सोशल में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है डेमोग्राफिक. हमारे देश में कितनी एज, किस तरीके के लोग ज्यादा है, जेंडर कितने हैं, मैक्सिमम एग्जैक्ट मीन्स की मैक्सिमम एज पॉपुलेशन कैसी है, यंगस्टर्स हैं या ओल्ड एज वाले हैं, राइट. जेंडर्स, एजुकेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बेस में पॉपुलेशन को जब आप डिवाइड करते हो. कल्चरल वैल्यू, जो आपके शेयर्ड बिलीफ्स, वैल्यूज हैं, जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो आपकी फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस से. Is it clear? Next is social structures. जहाँ पे क्लास फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, सोशल मोबिलिटी इम्पैक्ट, हाउ the society is impacting you, you are creating your structure, right? How you are interacting with your friends when you go to school, when you're in college, when you are in workplace. So how this society is creating the structure, right? Social attitudes, कि how you are dealing with gender roles, whether you are living in gender equality or not, you are concerned with your environment, you have some feelings or you have some emotions with your environment, right? This is what is the nature of socialism. The things which are which help you to make a society, right? These all things are the combination of society. Society में बात समझ में आई कि सोसाइटी, जो सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो, तो सोशल एनवायरनमेंट मींस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट डेमोग्राफिक्स, पॉपुलेशन को आप एज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे कर रहे हो. कल्चर वैल्यूज के बेसिस पे जब व्हेन यू आर वाचिंग, यू आर स्टडिंग लाइक उनके शेयर बिलीव्स क्या है, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या है, उनकी कम्युनिटी, फैमिली, सोशल स्ट्रक्चर, उनका क्लास किस तरीके से है, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है. जो एक ज्वाइंट फैमिली से आता है उनकी मेंटालिटी अलग, एक जो न्यूट्रल फैमिली से आती है उनकी मेंटालिटी अलग होती है. तो दिस इज ऑल मेकिंग द सोसाइटी, राइट, जिनसे हम इंटरेक्ट करते मिलते हैं. नेचर इज क्लियर टू एवरीवन. So social environment is a combination of demographics, cultural values, social structures, and social attitudes. Demographic is means that when you divide the population of a country on the basis of age, gender, right, education, income distribution. Cultural value means when you just uh,
divide your population on the basis of their shared beliefs, their religious practices, right? Their value system. Next, social structure like their class system, family structure, social attitudes. Impact of foreign culture on business. Consumer preferences. Product and services may need to adapt to align with the cultural taste and preferences of foreign markets. For example, food products might need to be adjusted to accommodate local dietary restrictions or religious practices. इसका मैं एक एग्जांपल दूंगी कंज्यूमर प्रेफरेंसेस किस तरीके से फॉरेन कल्चर बिजनेस से इम्पैक्ट कर रहा है. व्हेन मैगडी केम टू इंडिया, मैगडी बाहर से आया है, पिज्जा बाहर का है, राइट? तो दे आर फॉरेन बेस्ड कंट्रीज, बट दे आर कंज्यूमर की प्रेफरेंस को देखते हुए वो मार्केट में आए. अगर आप फॉरेन कभी गए हो और डू यू इन फ्यूचर व्हेनेवर यू विजिट, जस्ट लुक कि आपको मैगनी बहुत कम सिटीज होंगी, सॉरी कंट्रीज होंगी जहां पे आपको वेज बर्गर्स भी मिलेंगे. नहीं तो दे ओनली गिव यू नॉन वेजिटेरियंस बिकॉज एक्चुअली दे डील इन नॉन वेजिटेरियन ओनली. इज इट क्लियर? तो कंज्यूमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दे आर जस्ट इम्पैक्टिंग, राइट? आप उनको मालूम है कि अगर दे आर सेलिंग they are McD burger in India and they are not giving you 100% pure, they cannot survive in the market. That's why Aloo Tikki burger is introduced basically for India only, because mostly Indians prefer the Aloo Tikki burgers because vegetarians means that there is a no portion of egg. But when you talk in foreign of vegetarian, some portion of egg is included. Because in India, there are many cultures, many respect for their cultures, belief system, they do not even eat an egg also. So that's why consumer preference is impacted, right, by foreign cultures. Is it clear to everyone? ये example से याद हो जाएगा. Is it clear to everyone? Business practices. Culture norms and business etiquette vary from country to country, right? Every country has their own culture norms, own business etiquettes, and you have to just look. अगर मैगडी को इंडिया में काम करना था, मैगडी को इंडिया में आके काम करना था, तो उनको हमारी कंट्री के बिजनेस एटिकेट्स और कल्चर नॉर्म्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. That in India, when we talk about vegetarian, it means pure vegetarian. No portion of egg is included, right? So this is what business practices they should follow so that there should be no misunderstandings and no cultural culture conflict should arise, right? Is it clear to everyone? Culture conflicts ना हो पाए, इसकी वजह से बिजनेस प्रैक्टिसेस आपको कंट्री टू कंट्री पे डिपेंड करता है कि बिजनेस एटिकेट्स क्या है, वहाँ कल्चर नॉर्म्स क्या है. यू हैव टू फॉलो देयर स्टाइल्स, राइट? उनके लॉ ऑर्डर को यू हैव टू फॉलो. Workforce diversity. As business expand internationally, they may employ a more diverse workforce. They require sensitive to cultural differences in management, communications, and team. Diversity means that if you are internationally expanding, so you have more options, right? You have a different management system. You will learn more. You can diversity hai. So there are more options available to you, communication, team dynamics. So this is what a workforce diversity is. Brand perception, that certain symbols, colors, marketing messages have a positive connotation in one culture but negative meaning in another. कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ साइंस, कुछ सिम्टम्स, कुछ मतलब इस तरीके के सिंबल्स हैं जो एक कंट्री या एक कल्चर में तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, but there are some countries वहां पे वो उसी चीज को नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर. इज इट क्लियर? सेम एग्जांपल से समझ लो, मैगडी वाला, ठीक है? मैगडी में अगर इंडिया में वो सिर्फ नॉनवेज पे फोकस करते, राइट, बीफ एवरीथिंग, तो यहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाते. तो यहाँ पे एक बहुत ही निगेटिव इमेज हो जाती है मैगडी की. बट यही आप थाईलैंड या किसी अदर कंट्री में चले जाओ, वहां पे बहुत कॉमन है ये सब चीजें, तो वहां पे उन्हीं चीजों का पॉजिटिव इम्पैक्ट. इज इट क्लियर टू एवरीवन?
समझ में आ रहा है or should I explain once again? Is it clear to everyone? Please respond. In English or Hindi, in any language you want that कि English में समझा दो या हिंदी में. Once again. Maximum students को समझ में आ गया है. Let's move. Traditional values हो गई. Right? And their impact. The next topic is traditional values and their impact. So traditional values are long-lasting beliefs and practices that pass through the generations, right? Traditions क्या है? So एक बहुत सालों से from generation to generations चलता आ रहा है. Is it? What is traditional values? Traditional values are long beliefs that are implemented or us from generation to generations, right? Is it? तो सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर बिजनेस मस्ट अलाइन फॉर एग्जांपल पढ़ लेते ज्यादा क्लियर हो जाएगा कंपनी दैट रिस्पेक्ट लोकल कस्टम्स traditions in their marketing and operations can build their better relationship with customers. You know that in our country there are lots of cultures, right? Every culture has its own importance, own belief systems, right? Own respect. So if you want to do a business, you have to first satisfy the consumer, right? Because if consumer is not satisfied, you will not able to sell your product. So consumer ko to understand better the consumers, you have to understand their customs, their traditions, so that you can build a good relationship with customer, right? Is it clear to everyone? Next is workforce management. Traditional values may shape employee expectations such as work-life balance, hierarchy, and loyalty. We all want that our lifestyle should be a work lifestyle, right? कि हम अपने वर्क को भी टाइम दे पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस बना रहे. So it is very important to know, emphasize the teamwork and a group decision making, right? Next, corporate governance. In some cultures, traditional values affects business ownerships and leadership structures. Family-owned business may follow a traditional lines of succession, like Hindu undivided family (HUF). Have you heard this term earlier? HUF के बारे में सुना है आपने इससे पहले? HUF जहाँ पे HUF फॉलो होता है मतलब कि जो फैमिली का यंगर मेल मेंबर होता है करता वो ऑलरेडी सक्सेसर बन जाता है उस बिजनेस का. दिस इज व्हाट गवर्नमेंट कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स जहाँ पे ट्रेडिशनल वैल्यू से एक बिजनेस रन करा जा रहा है प्रॉपर लीडरशिप स्ट्रक्चर वो जो आपके फैमिली में रन होता जा रहा है फ्रॉम लास्ट जनरेशन तो वही आप फॉलो कर रहे हैं. दैट इज व्हाट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज, राइट? Last is ethical expectations. Traditional values may influence societal expectations of ethical behavior. Business that respect and align these values can improve their reputations, social standing within the community. अगर ethical expectations आज के टाइम पे अगर traditional values से अगर आप business कर रहे हो for example, तो you have to respect the society's norms. Social standing में you have to come so that जो consumers हैं they respect your business, they respect you and you make a good goodwill in the market. आप एक अच्छी goodwill बनाते हो. तो ethical expectations में ये भी है कि आप दूसरे की values करो, improve करो अपनी reputation. अगर आप society के लिए थोड़ा करते हो, right? एक society के लिए खड़े होते हो तो. Is it clear to everyone? HUF मतलब Hindu undivided family. Hindu undivided family. The topic is clear to everyone. Undivided.
यस, इन वन वर्ड समझ लो ज्वाइंट फैमिली। ऐसी ज्वाइंट फैमिली जहाँ पे आपको अपना ट्रेडिशनल बिजनेस ही रन करना है, आप कोई और काम नहीं कर सकते हो। ऐसे समझ, सिर्फ ज्वाइंट फैमिली नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल ऑडिट। चलो, 2 टॉपिक बचे, हमारी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास। कोई भी डाउट है ना, उसको हम लोग बेटा डाउट क्लियरिंग सेशन में ले लेंगे या लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, क्लास 5 मिनट्स एक्सटेंड होगी मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होगी। सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट इज एन इवैल्यूएशन ऑफ हाउ बिजनेस अफेक्ट्स द, मतलब ऑडिट करने का मतलब क्या है कि व्हेन यू आर चेकिंग, यू आर एग्जामिनिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। दैट इज व्हाट इज सोशल ऑडिट। जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एग्जामिनेशन हो रहा है, उसका कंपनी ने फुलफिल की है कि नहीं, उसे हम बोलते हैं सोशल ऑडिट। तो कम्युनिटी रिलेशनशिप, आपका कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप किस तरह का है, ठीक है। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट में आपके बिजनेस से किस तरीके से इम्पैक्ट डाला है, वेस्टेज कम किया आपने, कार्बन को एमिशन किया, यानी कि कार्बन कब कब यूज किया है, एनर्जी किस लेवल पे यूज की है, एनवायरनमेंट में किस तरीके का फुटप्रिंट, एक मार्क आपने छोड़ा है, ठीक है। आपने किस तरीके से एनवायरनमेंट को कम से कम तरीके से हार्म किया, लीस्ट हार्म किया, उसका इम्पैक्ट चेक करते हैं। एम्प्लॉयर वेलफेयर, कि एम्प्लॉयज के लिए आप क्या करते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी अच्छी वर्किंग कंडीशन है, वर्क प्लेस सेफ है कि नहीं है, कितनी डाइवर्सिटी है, कितना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, फेयर वेजेस है कि नहीं है, उनका एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, इस चीज का आप चेक करते हो। ऐसे क्लास में कस्टमर रिलेशनशिप, आपके जो भी कंपनी प्रोडक्ट्स दे रही है मार्केट में, क्या वो सेफ है, क्या वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, क्या कस्टमर सर्विसेज मिल रही है उनको, दे आर हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस और नॉट। दिस इज व्हाट इज सोशल ऑडिट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सोशल ऑडिट का मतलब समझ में आया? जब आपका एग्जामिनेशन होता है कि कंपनी कितने अच्छे से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर डाउट क्लियरिंग सेशन आज नहीं कंडक्ट हो पाएगा तो विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट वीक में कंप्लीट कर लेंगे, अपने डाउट्स को बस नोट कर लो, टाइम की शॉर्टेज है। ठीक है, लास्ट टॉपिक इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सोशल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है एक बिजनेस की, सोसाइटी के लिए। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप अपने रिड्यूस करो पॉल्यूशंस को, कंजर्व करो रिसोर्सेस को, ज्यादा वेस्टेज मत करो, ओवर यूज ना करो रिसोर्सेस को, प्रॉपरली यूज करो, ठीक है। सपोर्ट करो, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स लेकर आओ, ठीक है। एनवायरमेंट के लिए सेकंड, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि आप किसी कंज्यूमर को हार्म नहीं कर रहे हो, एम्प्लॉयज को हार्म नहीं कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटर इस तरीके का नहीं है जिसको आप डायरेक्टली हार्म करने की कोशिश कर रहे हो। आपके आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑनेस्टी है, ट्रांसपेरेंसी है, आप लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो, एथिकली काम कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो कर रहे हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज philanthropic responsibility. Philanthropic responsibility business can contribute to society by supporting charitable causes, community development program, initiatives that helps you to enhance the social well-being. आप कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रन कर रहे हो इस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं philanthropic responsibilities. समझ में आ रहा है? ये टॉपिक इजी टॉपिक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, राइट। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स कि जो भी आपका पैसा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, क्या आप उसमें से टाइमली अपने शेयर्स, मतलब जो आपके शेयर होल्डर्स है उनको पेमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, राइट। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक। प्रॉफिट हो रहा है अगर आपके बिजनेस में, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, जॉब्स दे रहे हो शेयर होल्डर्स को, ऐसा तो नहीं है शेयर होल्डर्स का पैसा ही नहीं दे रहे हो आप, आपकी मार्केट में शेयर्स की वैल्यू क्या है, ये सब इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इज इट क्लियर?
और उस पैसों से आप सोशल गोल्स को फुलफिल कर पा रहे हो कि नहीं. द टॉपिक इज एंड हियर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर इस करंट टॉपिक से किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क. दिस पर्टिकुलर स्लाइड में किसी को कोई डाउट है उससे क्वेश्चन अभी पूछ लो. बाकी जो टॉपिक्स है उनका हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे या डाउट क्लियरिंग में ले लेंगे. फिलेंथ्रोपिक का मतलब है बिजनेस में कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी बाय सपोर्टिंग चैरिटेबल कॉजेस, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और अदर इनिशिएटिव्स दैट एनहांस सोशल बीइंग्स. मतलब ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है कि आप कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आओ जो सोसाइटी की वेलबींग को इनहांस करें. इज इट? इसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो टॉपिक इज एंडेड हियर. कुछ टॉपिक्स के डाउट्स है आपको वो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे या डॉक्टरिंग सेशन में ले लेंगे. ठीक है, आज की क्लास यही एंड होती है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड वीक. थैंक यू एवरीवन. Recording stopped.